Good morning, students. So, let us continue with electromagnetic induction. In the previous video lecture, I taught you about electromagnetic induction, then how to determine the direction of induced current. The direction of induced current is determined with the help of Lenge's law. We know induced EMF is given by minus n d phi by dt, where negative sign shows that induced EMF or induced current will oppose cause of its production. D phi by dt is change in flux in 1 second. If there is only one turn, then n is equal to 1. If we have a coil of n turns, then induced EMF is given by this. Now, Lenge's law, what does it say? It says कि induced current will always oppose cause of its production. So let us apply Lenge's law here. This is a variable resistor. This is cell. This cell is sending current in this circuit. So if R is decrease, if this resistance is decreased, then value of current flowing in the circuit will increase. So I will increase. This is a epsilon EMF. So when current increases, the magnetic field which is produced by this portion of the wire, say PQ, magnetic field produced by this is perpendicular to the page and directed inwards. This is magnetic field which is produced by current in this PQ portion of the wire. Now you know this magnetic field, अगर मैं यहाँ बात करूँ बायोट-सेवर्ट्स लॉ के हिसाब से, तो magnetic field, this distance is suppose R. So इस पॉइंट पे magnetic field C पे, you know magnetic field at C will be 2KI by R. So if I increases, magnetic field at C will also increase. Here magnetic field will increase. When magnetic field increases, then phi is BA cos theta. Due to increase in magnetic field, phi will also increase. And when phi changes, EMF is induced. So I repeat, when R is decreased, current in the PQ wire will increase, due to which magnetic field at C will also increase. And due to increase in magnetic field, flux linked with this circuit, ये जो दूसरी coil है, it will also increase. And according to Faraday law, EMF or current will be induced in this loop which is placed on the right side. Now what is the cause? Cause of induced current is increase in flux. So this induced current जो कि इस सर्किट में फ्लो करेगा, it will try to oppose its cause. Oppose its cause means to decrease this flux. तो जो फ्लक्स है यहाँ पे इसके साथ जो लिंक हो रहा था वो बढ़ रहा था, वो बढ़ा तो यहाँ पे करंट इंड्यूस हो गया. सो कॉज इज इंक्रीज इन magnetic flux. The induced current which will flow in this second loop will try to decrease magnetic flux linked with it. तो magnetic field of PQ is inward. जो इसमें करंट इंड्यूस होगा अगर वो ऐसे फ्लो करे एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट, this induced current will produce magnetic field perpendicular to the page and upward. और ये magnetic field ऊपर की तरफ होगी, it will weaken
द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय पी क्यू. सो ये इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंक्रीज इन करंट इन पी क्यू विल बी वीकंड. कमज़ोर कब हो सकती है? weakened if the current in this second loop flows in clockwise direction. तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? अपवर्ड. सो फ्लक्स में जो इंक्रीज हो रही है उसको ऑफसेट किया जा सकता है. नाउ सेकेंड, this is a magnet, it is brought towards this coil to which a galvanometer is connected. So what will be the direction of current in this circuit? We know when north pole of magnet is moved toward this coil, flux linked with this coil will increase. So what, due to change in flux, इसमें current induce हो जाएगा. तो what is the cause of induced current? नॉर्थ पोल का पास आना. नॉर्थ पोल मोशन ऑफ नॉर्थ पोल, यू कैन से मोशन ऑफ नॉर्थ पोल टूवर्ड्स कॉइल इज द कॉज. जैसे ही नॉर्थ पोल इसकी तरफ आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा. तो वी कैन से कारण हुआ नॉर्थ पोल का पास आना. तो नॉर्थ पोल को पास आने से इंड्यूस करंट रोकना चाहेगा. सो व्हेन कॉइल मैग्नेट इज ब्रॉट टुवर्ड्स द कॉइल, इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा. अब जब इसमें इंड्यूस ईएमएफ जो पैदा होगी उसके कारण इंड्यूस करंट फ्लो करेगा, तो दिस कॉइल विल आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड वी कैन से कि ये कॉइल एक प्रकार की मैग्नेट में तब्दील हो गई. सो इट विल हैव टू पोल. तो इस तरफ नॉर्थ पोल होना चाहिए फिर इंड्यूस. तो इधर नॉर्थ पोल होगा तो इस नॉर्थ पोल का मोशन मैग्नेट के नॉर्थ पोल का मोशन अपोज किया जा सकता है. सो यहाँ पे क्लॉक रूल के हिसाब से करंट यहाँ पे नॉर्थ पोल तब इंड्यूस होगा when current is anti-clockwise. So direction of current will be anti-clockwise. हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं. This is the direction. Now third, this is a bar magnet. It falls through a metal ring. What will be the acceleration of magnet? तो सपोज दिस रिंग इज प्लेस्ड ऑन टेबल और बिल्कुल इसके रिंग के सेंटर की तरफ ऊपर से मैग्नेट आ रहा है. व्हेन मैग्नेट फॉल्स डाउन तो डिस्टेंस मैग्नेट के नॉर्थ पोल में और लूप के बीच में कम हो रही है, बिकॉज ऑफ विच ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस रिंग के अंदर से पास करेगी. सो मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंक्रीज. ड्यू टू इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा करंट. और इंड्यूस करंट इसमें जब फ्लो करेगा इट विल आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. तो दिस लूप इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड. सो वी कैन से दिस लूप इज एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. सो इट इज़ आल्सो बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट. If it is behaving like a magnet, it will have two poles. तो ऊपर के फेस की तरफ there should be north pole. जब ये नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ इंड्यूस होगा तो ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल को नीचे आने से रोकेगा. So for that again current should flow in anti-clockwise direction. अच्छा, this has become like a magnet. That north pole induced on the top face will oppose downward motion of north pole of magnet. अगर अकेली फोर्स लगा रही होती तो इसका जो एक्सेलरेशन होता वो 9.8 होता. सो ये एक्सेलरेशन, बट दिस इंड्यूस नॉर्थ जो ऊपर की तरफ है, दिस इंड्यूस नॉर्थ विल एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स ऑन द बार मैग्नेट. सो इसके ऊपर ये है इंड्यूस करंट ने जो फोर्स लगाई,
ये है नीचे की तरफ जो अर्थ ने लगाई, सो दिस इज फोर्स ऑन मैग्नेट ड्यू टू अर्थ. वी नो अकॉर्डिंग टू न्यूटन एक्सेलरेशन इज F अपॉन m. सो दिस फोर्स, अगर ये लूप नहीं होता तो इसके ऊपर सिर्फ ये नीचे वाली फोर्स लगती और एक्सेलरेशन ज़्यादा होता. बट ड्यू टू इंड्यूस करंट एक फोर्स और लगेगी ऊपर की तरफ, तो वी कैन से मैग्नेट के ऊपर टोटल फोर्स विल बी, यू कैन से ये है फोर्स अगर ये रिंग नहीं है. तो अब एक्सेलरेशन जब रिंग के ऊपर, जब रिंग नीचे रखा हुआ और मैग्नेट नीचे आ रहा है, देन नेट फोर्स विल बी अर्थ की फोर्स माइनस इंड्यूस करंट ऊपर की तरफ डिवाइड बाय. सो न्यूमिनेटर कम हो गया, सो एक्सेलरेशन विल डिक्रीज, so this acceleration will be less than g. But remember, if this is unclosed wire loop, there is a cut, ये ऐसे है, ऐसे जुड़ा नहीं है, then इंड्यूस EMF तो पैदा होगी बट करंट नहीं फ्लो करेगा. अगर करंट नहीं फ्लो करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा तो इट इज़ नॉट अ मैग्नेट. इफ़ इट इज़ नॉट मैग्नेट तो डाउनवर्ड मोशन ऑफ नॉर्थ पोल को कोई अपोज नहीं करेगा और इसका एक्सेलरेशन इट विल बी इक्वल टू g. Now this is fourth question based on Lenz's law. What will be the direction of induced current in this coil and this second coil? नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो यहाँ पे फ्लक्स घटेगा, बी किनारे के साथ जो लिंक होगा. अगर फ्लक्स घटेगा तो फिर यहाँ इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा. तो टू प्रिवेंट मैग्नेट फ्रॉम गोइंग टू राइट साइड, यहाँ पे साउथ पोल इंड्यूस होना चाहिए, और इस साउथ पोल क्या करेगा, इट विल अपोज मोशन ऑफ मैग्नेट टूवर्ड्स राइट. तो यहाँ साउथ पोल तब प्रोड्यूस होगा अगर करंट क्लॉकवाइज. इसमें पास जा रहा है तो इसके साथ फ्लक्स बढ़ेगा, सी के साथ फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो फिर यहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाएगा. तो कारण क्या है यहाँ पे इंड्यूस करंट पैदा होने का, मोशन ऑफ साउथ पोल टूवर्ड्स सी. सो इट विल अपोज मोशन ऑफ साउथ पोल टूवर्ड्स सी जो इंड्यूस करंट है, तो यहाँ साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा. यहाँ साउथ पोल इंड्यूस होगा कब, व्हेन करंट इज क्लॉकवाइज. सो दीज आर few questions which are very important. Now numerical problems. ये हमारे पास एक मैग्नेट है और दूसरा ये, दिस इज़ नॉर्थ पोल, दिस इज़ साउथ पोल. ये जो बीच में जगह है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और ये जो फ्लक्स है यहाँ पे इस जगह पे इट इज़ गिवन 8 into 10⁻⁴ वेबर. अ पीस ऑफ वायर जो कि यहाँ ऐसे था, सपोज इधर, दिस इज़ अ पीस ऑफ वायर, दिस पीस ऑफ वायर इज़ मूव्ड टूवर्ड्स दिस साइड. तो जब ये यहाँ दोनों मैग्नेट के बीच में जगह है, जब यहाँ आएगा तो इसके साथ फ्लक्स लिंक्ड होगा. इसके नीचे की तरफ यहाँ B0, बी सिर्फ ये दो पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ, इनके बीच में जो जगह है सिर्फ यहाँ पे वी कैन से ये दो मैग्नेट, ये जो स्पेस ये यहाँ से इन दो डॉटेड लाइंस के बीच में है. ओनली इन दिस रीजन देयर इज मैग्नेटिक फील्ड. ये रीजन, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है. तो इफ़ आई मूव अ पीस ऑफ वायर, से दिस इज़ अ वायर, इसको मैं ऐसे ला रहा हूँ इधर नीचे, तो जैसे ही ये इस लाइन से नीचे आएगी ये मैग्नेटिक फील्ड में होगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी लिंक्ड विद इट. और जैसे ही ये इस लाइन से नीचे आ जाएगी, इस हॉरिजॉन्टल डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे, तो अगेन फ्लक्स विल बिकम 0. सो जब तक ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब दोनों मैग्नेट के बीच में जो स्पेस है उसमें रहेगी, तब तक फ्लक्स इसमें रहेगा. φ1 जो दे रखा है इन दोनों मैग्नेट के बीच में, इट इज़ 8 × 10⁻⁴ वेबर. और जब यहाँ आ जाएगी तो फ्लक्स विल बी 0 बिकॉज फ्लक्स इज
बी ए कॉस ऑफ थीटा। सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जीरो है, यहाँ भी जीरो है, और यहाँ जीरो नहीं है, इसके बीच में नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे फ्लक्स जीरो हो जाएगा बिकॉज बी जीरो, फाई टू इज जीरो। सो चेंज इन फ्लक्स इज delta phi upon delta d, or you may also write induced EMF is d phi upon dt, change in flux divided by time in magnitude. I am dropping here and dropping negative sign. So change in flux is phi to final minus initial divided by delta t. So final is 0, initial is 8 into 10 raised power minus 4 Weber, divided by time is given कि in 0.5 सेकेंड इट इज़ टेकन आउट, यहाँ से बाहर निकल जाता है 0.5 सेकेंड। सो इट गिव्स अस 1.6 into 10⁻³ वोल्ट इज द इंड्यूस्ड EMF। सो इफ आई टेक नेगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। Now second is square loop of side 10 centimeter and resistance 0.70 ohm is placed vertically in east-west plane. East-west plane. If you are inside, if you are in a room, घर के अंदर हो आपके घर की वो दीवार which is running parallel to railway road, ये it is in west east direction या east west direction. I repeat, a wall of your room which is running parallel to railway road, that is your vertical plane running east west. उस दीवार के ऊपर आप एक स्क्वायर लूप फिट कर दो, स्क्वायर फ्रेम. The direction of area of this square loop will be towards Chandigarh or towards Delhi, because we know direction of area is given by outward drawn normal. तो अगर आप इस दीवार के ऊपर पेन की कैप को खोल के परपेंडिकुलर लगा दें तो उसकी टिप इट विल बी टूवर्ड्स चंडीगढ़ और टूवर्ड्स दिल्ली. सो दिस pen which is fixed perpendicular to the wall will give direction of area. So this is a square loop. It is placed, ये दीवार है, it is placed in west east plane. मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है कि ये साउथ से नॉर्थ जा रही है, ये साउथ है, ये नॉर्थ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट. नो आई एम सॉरी. द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इज सेट इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हुआ. ये एरिया हुआ इसका चंडीगढ़ की तरफ या दिल्ली की तरफ, जिधर मर्जी लेना, ऊपर की तरफ ले लो या नीचे की तरफ. सो द एंगल बिटवीन ए वेक्टर, ये जो कि मैंने चंडीगढ़ की तरफ ले लिया, इसका एरिया नॉर्थ की तरफ है चंडीगढ़, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज 45. सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी ए कॉस थीटा, बी और ए के बीच में एंगल 45. सो पुट वैल्यूज, ये एरिया आ गया इसका लूप का 10 सेंटीमीटर, साइड है तो 0.1 मीटर हो गया इसका साइड. सो दिस इज एरिया. Put values, this is magnetic flux. Then this magnetic field is reduced to 0 in 0.7 second, means phi 2 will become 0. If B is 0, flux will reduce to 0. So change in induced EMF, change in flux divided by time. So यहाँ से change in flux, final 0, initial इतना था, time ये. So you can calculate in magnitude ही आ जाएगा 1 into 10⁻³ वोल्ट. इंड्यूस करंट निकालना हो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इंड्यूस EMF अपॉन रेजिस्टेंस गिवन है 0.7, तो ये इंड्यूस करंट आ गया. अनदर न्यूमेरिकल, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैविंग 500 टर्न्स एंड रेजिस्टेंस 2 ohm
is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of Earth's magnetic field. It is rotated about its vertical diameter through 180 degree in 0.25 second. Calculate induced EMF, then current induced, ये horizontal component of Earth's magnetic field. If you remember, I have told you that magnetic field of Earth is from Delhi to Chandigarh. In geographic south means towards Tamil Nadu. जियोग्राफिक साउथ की तरफ है तमिलनाडु। तमिलनाडु के नीचे जो है नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट है जो धरती के अंदर दबा हुआ है। एंड टूवर्ड्स जियोग्राफिक नॉर्थ मीन्स टूवर्ड चंडीगढ़, जो अर्थ के अंदर मैग्नेट पड़ा हुआ है उसका उस तरफ साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती है, तो नॉर्थ पोल है चेन्नई की तरफ, तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी और टूवर्ड चंडीगढ़ जाएगी। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़, मीन्स फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। आई विल यूज सेम डायग्राम। दिस इज साउथ टू नॉर्थ, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यू में राइट इट बी भी लिखा है इसमें। तो ये जो लूप है इसका एरिया भी चंडीगढ़ की तरह है। आप क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही एक सर्कुलर लूप को उस दीवार के ऊपर फिक्स कर दो विच इज़ रनिंग पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट, मीन्स पैरेलल टू रेलवे। द डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑफ दिस सर्कुलर लूप fixed on this wall will be towards Chandigarh. So magnetic field is also towards Chandigarh. So both are parallel. Now you change side. You rotate it by 180 degree. जो आपकी तरफ साइड थी उसको उल्टा कर दो अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये एरिया अब इसका टूवर्ड्स दिल्ली हो गया आफ्टर रोटेटिंग इट थ्रू 180 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो है इसी तरफ रहेगी चंडीगढ़ की तरफ या टूवर्ड्स नॉर्थ। सो पहले एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वाज 0 एंड आफ्टर रोटेटिंग इट व्हाट विल हैपन, डायरेक्शन ऑफ एरिया चेंज हो जाएगी। तो यू कैन से कि आपके पास एक प्लेट है जिसमें हम खाना खाते हैं, तो उसको आपने सीधा रखा हुआ है जिस तरफ खाना खाने के लिए। अगर आप उसको धो के उल्टा कर दें तो वो 180 डिग्री से रोटेट करेगी। पहले जो टॉप सरफेस का एरिया था जिधर से आप सीधी रखी थी तो इसका एरिया ऊपर की तरफ, जब उल्टी रखेंगे तो जो हमारी सीधे वाली साइड है तो उसका एरिया नीचे की तरफ हो जाएगा, जिसको अगर हम 180 से रोटेट करें। Now initial flux is NHA cos theta, theta is 0, so it will be NHA, number of turns 500 है। ये it is not needed, मैं बाद में इकट्ठी वैल्यूज पुट करूँगा। फाइनल फ्लक्स NHA cos 180 which is -1, so this is the final flux। टाइम रोटेट करने के लिए कितना लगा गिवन, तो वी नो इंड्यूस EMF इज इधर यू राइट डेल्टा फाई या फाई टू माइनस फाई वन या डी फाई बाई डी टी, वन एंड द सेम थिंग। दिस इज द फाइनल फ्लक्स माइनस दिस इज इनिशियल फ्लक्स, इट गिव्स यू -2 MA डिवाइड बाय डेल्टा टी। सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, दिस इज द इंड्यूस EMF, करंट इंड्यूस EMF अपॉन रेजिस्टेंस, ये करंट। लास्ट नंबर फोर्थ, we have a circular wire loop of radius 12 centimeter. Area of this loop will be pi r square. This is pi in r 12 into 10 power -2, इसका स्क्वायर लेंगे हम, सो पाई आर स्क्वायर इट विल बी ये आ जाएगा। दिस इज द एरिया ऑफ द वायर लूप।
its resistance is 8.5. Magnetic field is perpendicular to the plane of circular loop. What is the induced current? In the circular loop, magnetic field ऐसे चेंज कर रही है. In simple words, you can say टेबल का जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक. अपने स्टडी टेबल पे प्लेस a circular wire loop. The area of circular wire loop will be perpendicular to the page and directed upward. Magnetic field is also perpendicular to the table and directed upward. So angle between B and A is 0. Now we know phi is BA cos theta. Theta is 0 here, so this is flux. Then we also know induced EMF is minus d phi by dt. Phi की value, this is value of phi. B is not constant, area is constant. See here, magnetic field in Tesla, ये 1 2, ये पहले magnetic field बढ़ रही है, ये this is time, 0 टाइम पे magnetic field 0 थी. 1 सेकेंड बाद magnetic field इतनी हो गई, 2 सेकेंड बाद it is 1 Tesla. फिर ये मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला ही रही 2 सेकेंड तक, मीन्स बिटवीन 2 to 4, एंड देन इट डिक्रीजेस. सो वी आर टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट एंड देन प्लॉट अ ग्राफ. सो बी को बाहर, ए को बाहर लीजिए, ए इज कॉन्स्टेंट, हेयर मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग. सो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस. लेट अस राइट डी बी इज B2 minus B1, dt T2 minus T1. If you look between 0 and 2, 0 पे जो वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की वो 0, 2 सेकेंड पे वैल्यू इज 1. सो हम लगा रहे हैं बिटवीन 0 to 2 सेकेंड, मीन्स यहाँ से हम यहाँ पे दिस टाइम इज T1, दिस टाइम इज T2, दिस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज B1, और 2 सेकेंड पे जो वैल्यू है इट इज़ B2. सो पुट कीजिए वैल्यू, B2 इज़ 1, B1 0, सो ये इतना हो गया. एंड इंड्यूस करंट इज इंड्यूस EMF अपॉन रेजिस्टेंस माइनस में. आई एम नॉट टेकिंग मैग्नीट्यूड, आई एम टेकिंग नेगेटिव साइन ऑल्सो. बिटवीन 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, अगर 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तो अब ये T1 हो जाएगा एंड दिस इज T2, और ये मैग्नेटिक फील्ड दिस इज B1 जो आपकी 2 सेकेंड पे है, और ये 4 सेकेंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज B2. सो बिटवीन 2 to 4 देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज 1 थी 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे 1 थी, और हमारी T2 टाइम पे भी 1 ही है, तो इट इज़ 0. इंड्यूस करंट इज 0. बिटवीन 4 to 6, इफ़ बिटवीन 4 to 6 लगाना चाहते हैं तो ये T1 एंड दिस इज T2. मैग्नेटिक फील्ड एट T1 उसकी वैल्यू B1 होगी. मैग्नेटिक फील्ड एट T2 मीन 6 सेकेंड, दैट इज B2. सो B2 इस टाइम पे इट इज़ 0, B1 इट इज़ 1. सो टाइम 6 minus 4, तो ये आपका, and this is positive 2.7. So induce current 0 से 2 सेकेंड तक, rate of change of magnetic field is constant. So ये रहेगा करंट minus 2.7 रहेगा, ये 0, this is 2 सेकेंड, ये माइनस 2.7 माइनस 2.7 माइनस 2.7 माइनस 2.7, 2 सेकेंड पे ये एकदम 0 हो जाएगा. क्यों? 2 सेकेंड के बाद मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज होगी. अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज होगी DB 0, इंड्यूस EMF विल बी 0. सो ये ग्राफ यहाँ ऐसे चलेगा यहाँ तक. 4 सेकेंड पे एकदम फिर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ करेगी. डिक्रीज़ करने के कारण फ्लक्स डिक्रीज़ होगा एंड करंट पॉजिटिव हो जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगी. सो ये पॉजिटिव 2.7. सो दिस इज अबाउट न्यूमेरिकल्स.
Now we have motional EMF. This is a U-shaped frame. This is U-shaped frame, and PQ is a movable side. It can be easily moved on this U-shaped frame, and there is uniform magnetic field which is perpendicular to the page and directed inwards. PQ conductor is moved with velocity v towards the left. Length of PQ is equal to L. चलिए मान लेते हैं at any instant this से RS, RQ is equal to X. What is the area of this rectangle? PQRS. It will be L into X. Now magnetic field is perpendicular to the page. अगर हम देखें तो ये 1 2 3 4, चलिए मान लिया एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से नीचे पास कर रही है, कि यहाँ से, कि यहाँ से, कि यहाँ से. सो दीज आर 4 magnetic field lines which are passing through this rectangular wire loop. ये इसके बाहर है, ये लूप के अंदर से नहीं पास कर रही है, इसको नहीं लेंगे. सो देयर आर 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन विच आर पासिंग. जैसे हम इसको इधर लाएंगे, जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो ये इसका एरिया कम हो जाएगा. जब पी क्यू कंडक्टर यहाँ आ जाएगा तो अब इसके अंदर से 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी और हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस लूप हैज़ डिक्रीज्ड. तो suppose it is moved towards left with velocity v, so phi is b into a, area is lx, एंगल इसके एरिया के बीच में u में टेक 180, इसके एरिया की डायरेक्शन ऊपर की तरफ लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, देन थीटा इज 180. अगर आप इसका नीचे वाला सरफेस लेंगे तो उसके एरिया की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे की तरफ. जैसे पेज के देयर आर 2 सरफेसेस, जो मैंने रखा है टॉप की तरफ, इसके एरिया की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और ये जो इसका दूसरा सरफेस है नीचे वाला, इसके एरिया की डायरेक्शन निकालनी हो तो ये बिल्कुल इसके ऊपर पेन को चिपकाएंगे नीचे की तरफ से, तो डाउनवर्ड. सो अकॉर्डिंग टू Faraday law, induced EMF is minus d phi by dt. This is value of phi. B and L constant. कंडक्टर मूव करेगा, x डिक्रीज करेगा. सो dx by dt, it is velocity of this PQ conductor. So it is minus v, negative direction of x इसी तरफ. तो ये induced EMF is VLB. करंट जो इसमें फ्लो करेगा दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस. सो दिस इज इंड्यूस्ड करंट. Direction of this induced current is given by Fleming right hand rule. Right hand rule क्या कहता है? You again, I have posted a picture of Fleming right hand rule, so you kindly see that picture. So according to right hand rule, thumb will be in the direction of motion of conductor, and central finger will give direction of current. C for central finger, C for current. Then forefinger F for forefinger, F for field. It will be in the direction of magnetic field. So stretch thumb, central finger and forefinger of your right hand mutually perpendicular to each other in such a way thumb is in the direction of motion of conductor, forefinger is in the direction of magnetic field, then central finger will give direction of induced current. So if you apply this rule here, this is the direction of motion of conductor, magnetic field is perpendicular to the page and directed downward,
then induced current will flow from P to Q. But एक क्वेश्चन यहाँ पे कि जो लगाना है आपने पी क्यू साइड पे लगाना है, ना कि एस आर पे। जो पार्ट मूव कर रहा है उसके ऊपर लगाना है। सो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, करंट विल फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नो मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंज फोर्स, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। दिस इज पी क्यू कंडक्टर, यही ऊपर वाला, इट इज मूविंग टूवर्ड्स दिस साइड। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पी क्यू कंडक्टर। There are free electrons in this conducting rod PQ. If it is made of copper, तो कॉपर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इफ़ दिस कंडक्टर इज मूविंग टूवर्ड्स दिस साइड, तो जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं वो भी इस तरफ मूव कर रहे हैं। लाइक कि इफ़ यू आर सिटिंग इन ए बस, इफ़ बस इज मूविंग यू आर ऑल्सो मूविंग। तो जैसे यू आर पैसेंजर और बस में बैठे हैं, वैसे ही जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं दे आर पैसेंजर, और एक कंडक्टर जो है बस से इधर जा रहा है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो यू नो अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो देयर इज मैग्नेटिक फील्ड जो कि नीचे की तरफ है, और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी यू कैन से इफ़ इट इज़ लाइंग ऑन टेबल, तो चार्ज पार्टिकल तो इधर जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द पेज एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो एंगल दोनों के बीच में, दिस इज बी वेक्टर पैरेलल टू द टेबल, और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, तो दोनों के बीच में एंगल 90। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय दिस। नाउ दिस मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, ऊपर की तरफ। अब सी मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर इकट्ठे होने लगेंगे इस तरफ, और इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब लेट अस सपोज यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, तो 100 इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठे हो गए तो 101 नंबर इलेक्ट्रॉन को ये मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ ले जाने लगी। लेकिन ये जो 100 इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इट विल रिपेल दिस 100 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गोइंग अप। सो जो 101 नंबर इलेक्ट्रॉन है जिसको ये मैग्नेटिक फोर्स ऊपर ले जाना चाहती है इस तरफ, दिस 101 नंबर इलेक्ट्रॉन विल बी रिपेल्ड बाय दीज 100 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पहले मैग्नेटिक फील्ड एकत्रित कर चुके हैं। सो इफ़ दीज फोर्सेस आर इक्वल, कि मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स ऊपर की तरफ लगाई एफ और ये जो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं 100 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ इकट्ठे हो गए वो नीचे की तरफ लगे। सो इफ दीज टू फोर्सेस आर इक्वल देन माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल स्टॉप फ्रॉम Q to P end. So in equilibrium Fm is equal to Fe, put values, ये आ गया नेगेटिव E और नेगेटिव E कट गए, ये आ गया। वी ऑल्सो नो E इज माइनस dV बाई dr। सो dV पोटेंशियल डिफरेंस लेने के बजाय मैं इसको V ले रहा हूँ। डिस्टेंस जो है इन दो पॉइंट्स के बीच में इट इज़ L, so it gives induced EMF is BLV. Remember this is velocity, this is velocity, this is potential difference. This is electric field, you may write it epsilon induced EMF। चलिए ऐसे, so this is induced EMF, तो induced EMF is VLV, बिल्कुल वही पहले वाला रिलेशन। Now force on moving arm PQ, we know a charged particle a current carrying conductor placed in magnetic field experiences force, and that force is given by ILB sin theta. Here theta, angle between IL vector and B vector
ये दिस इज द फोर्स, इट इज 90 डिग्री। सी करंट नीचे की तरफ है, तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ये होगी नीचे की तरफ, पी से क्यू पैरेलल टू द पेज, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द पेज एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड। सो एंगल बिटवीन आई एल वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90। दिस कंडक्टर इज मूविंग टूवर्ड्स दिस साइड, आप इसको इधर खींच रहे हो। नाउ वी नो कि ये जब इसमें करंट फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी है यहाँ पे, तो इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी एंड दैट फोर्स उसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से दी जाएगी। देखिए इस फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकलती है, और इस फोर्स की डायरेक्शन भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकलती है, बट इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमारी राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। So this conductor will experience force because it is carrying current and it is in magnetic field. According to Fleming left hand rule, वो force इधर लगेगी। This is force experienced by PQ conductor which is carrying current. तो इधर force लग रही है, अगर आप इसको इधर ले जाना चाहते हैं तो you will have to apply force. If you are applying force to move this conductor towards left, you are doing work. Your energy will be consumed, and that energy consumed is converted into electrical current energy. So let us calculate this force जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इसके ऊपर लगेगी, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर इस तरफ। सो करंट आई एल बी साइन 90, आई इंड्यूस करंट हमने ये निकाला है, एल बी, सो इट इज द फोर्स। इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी आपको टूवर्ड्स लेफ्ट टू मूव पी क्यू कंडक्टर। पावर डिलीवर्ड, यू अप्लाइड फोर्स टू मूव कंडक्टर टूवर्ड्स लेफ्ट, सो यू परफॉर्म वर्क। तो पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, दिस इज वैल्यू ऑफ फोर्स। ये ऊपर निकालिए आपने। अगर इधर लग रही है फोर्स 5 न्यूटन या 50 न्यूटन, तो आपको इस कंडक्टर को इधर ले जाने के लिए 50 ही लगानी पड़ेगी। सो दिस इज द फोर्स, ये है फोर्स आपने लगाई, ये है फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। सो पुट वैल्यू ऑफ एफ, दिस इज वैल्यू ऑफ एफ, ये इंटू बी, ये आ गया। पावर डिसिपेटेड, जब इस लूप में करंट फ्लो करेगा तो हीट विल बी प्रोड्यूस, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर लूप। सो पुट वैल्यू ऑफ आई, दिस इज वैल्यू ऑफ आई, इसका स्क्वायर, सो दिस इज पावर डिसिपेटेड। 1 सेकेंड में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, दैट इज पावर। नाउ एट लास्ट, रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज एंड change in flux. We know according to Faraday law, induced EMF is delta phi by delta t. Induced current is epsilon upon r. This is value of epsilon. It can be rewritten like this. We also know current is delta q by delta t. So equate equation number 1 and equation number 2. ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 बाई आर डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। सो डेल्टा टी कट गया, दिस इज इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इसमें टाइम नहीं है डेल्टा टी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।